اسرائیل ایک بار پھر امن کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ لبنان پر مسلسل حملوں کے باعث ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جب تک لبنان اور غزہ میں مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی، مذاکراتی ٹیم امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گی۔ ایران اور مزاحمتی فرنٹ کے درمیان آبِ ہرمز اور باب المندب کی مکمل بندش پر بھی اتفاق ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لبنان پر حملے جاری ہیں تو جنگ بندی معاہدہ بھی ختم ہونے کا امکان ہے۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری صہیونی دہشت گردی میں 3412 افراد شہید اور 10,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ جنگ بندی لبنان سمیت ہر جگہ پر لاگو ہے۔ ایک محاذ پر خلاف ورزی تمام محاذوں پر خلاف ورزی کے برابر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا، کہا اگر جنگ بندی ختم ہوئی تو ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے امریکہ پر جنگ بندی کی پاسداری نہ کرنے کا الزام لگایا، کہا امریکہ اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے روکنے میں ناکام رہا، اب سب اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت کے بعض علاقوں پر ممکنہ حملوں کے احکامات پر تشویش سے متعلق آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایران کی جانب سے پاکستان سے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی درخواست بھی کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، کہا جنگ بندی کے تسلسل سے موجودہ مفاہمت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب نے کویت پر میزائل حملوں کو ملکی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کویت پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ایسی کارروائیاں خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کویت نے حملوں کو قومی سلامتی پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ ایک بیان میں کہا اپنے دفاع کے لیے جوابی اقدامات کا حق رکھتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل نے بھی کویت پر میزائل حملوں کی مذمت کی اور عالمی برادری سے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا پیغام، کہا یورپی یونین کا حق دفاع استعمال کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہرانا منافقت ہے۔ واشنگٹن کے یک طرفہ مطالبات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اعتماد کی کمی اور امریکی پالیسیز میں تبدیلیوں سے سفارتی عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ نے آبِ ہرمز کے قریب ایران کے گروہ اور قشم جزیرے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام، ایک زمینی کنٹرول اسٹیشن، ریڈار اور 2 ڈرونز تباہ ہوئے۔ ایران نے بھی امریکی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ جزیرے سرک میں ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے امریکی فوجی اڈے کو نقصان پہنچایا، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ میزائل پر تحریر تھا، آخری امریکی فوجی کے انخلا تک حملے جاری رہیں گے۔ تہران کی جانب سے کویت پر بھی میزائلز اور ڈرونز حملے کیے گئے۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کے 8 ممالک میں موجود 20 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ فضائی دفاعی نظام، نگرانی کرنے والے طیاروں، ایندھن کے ذخائر اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکی اڈوں کی تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کر دی۔ اور دیگر خبریں شامل کریں۔ گلگت بلتستان کے فیصلے عوام کریں گے، شہر اقتدار میں بیٹھا بابو نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاق پر تیر برسا دیے۔ بلاول بھٹو الیکشن مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ شگر میں جلسے سے خطاب میں کہا جی بی اور آزاد کشمیر کے الیکشن پاکستان کے عام انتخابات کے ساتھ کروانے چاہیے۔ وفاق کنگال ہے تو گلگت اور کشمیر کی وزارت ختم کرے، کبھی نہیں کہا ہمیں سلیکٹ کر کے لاؤ۔ کارکن فارم 45 ہاتھ میں لے کر واپس جائیں، فارم 47 کا بندوبست میں خود کروں گا۔
अगर कहीं कोई आईनी तरमीम होना है, उसमें हमारा सबसे पहला एम हमारा होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के इलेक्शंस उसी टाइम हो जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का सिलसिला शुरू किया जाए। वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। इतना सऊदी अरेबिया के पास तेल है, उतना सिंध के पास कोयला है, मगर इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज उनका है। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना, वो बंद करें। कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए। मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करे। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। सूबे अमीर विफाक गरीब हो गया। विफाकी तरक्याती बजट 8 साल से जमूद का शिकार, सूबों का 3 गुना बढ़ गया। एहसन इकबाल का शिकवा, वसाइल की कमी के बायस गैर अहम मंसूबे जारी रखने से इनकार। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फंड NFC में रखने की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, विफाकी बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत काफ़ी गरीब हो चुकी है। सूबों की जो ADPs हैं 3 गुना उनमें इजाफा हो चुका है। PSTP पिछले 8 सालों में जमूद का शिकार हुआ। हमारे प्रोजेक्ट्स अनफंड होने शुरू हो गए। वजारतों के पास से तकरीबन 4000 अरब की डिमांड्स आई। 153 अरब वो है कि जो AJK, GB और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देना है। ये फंड्स NFC से जाने चाहिए उन्हें। 2018 के बाद वफाकी वसाइल का खतीर हिस्सा डेट सर्विसिंग की नज़र हुआ। वो रकम जो डेवलपमेंट में खर्च होने चाहिए थे वो अब कर्जों की अदायगी में खर्च हो रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन इन विच वी आर ऑपरेटिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात, आइंदा बजट और मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, सनती पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों पर जोर दिया कि वो जॉइंट वेंचर्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मकामी पैदावार को फ़रोग़ दें। कारोबारी शख्सियात ने मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। खबरदार होशियार, पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर अवाम के लिए सख्त शिकंजा तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने 5 साल के दौरान 10,780 अरब रुपए बटोरने का प्लान बना लिया है। नए बजट 2026-27 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा, बल्कि अगले माली साल 2027-28 में ये बोझ बढ़कर 1,915 अरब, साल 2028-29 में हजम मजीद बढ़कर 2,131 अरब, साल 2029-30 में 2,370 अरब और साल 2030-31 में 2,637 अरब तक जा पहुंचेगा। यही नहीं, सारिफीन पर हर साल GDP के 1.2% के मुसावी बोझ भी डाला जाएगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इजाफी सरचार्ज आयद होने से अवाम महंगाई के मजीद बोझ तले दब जाएंगे। ईरान से नहीं सुना कि वो मुज़ाकरात मुअत्तल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा इस मौके पर खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है, हम खामोश रहकर नाकाबंदी जारी रखेंगे। वाज़े किया कि मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ये मतलब नहीं कि हम वहाँ जाकर बम गिराना शुरू कर दें। ईरान से नहीं सुना कि वो मुज़ाकरात मुअत्तल कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा, हकीकत यह है कि हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, इस मौके पर खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है, हम खामोश रहकर नाकाबंदी जारी रखेंगे। मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ये मतलब नहीं कि हम वहाँ बम गिराना शुरू कर दें।
आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची की कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी जेल में, मगर मुनशियात की फरोख्त जारी। पापड़ के पैकेट्स में सप्लाई का इंकशाफ। मुनशियात फरोश घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट्स को कोकेन के पैकेट्स पहुंचाने लगे। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने मजीद अकाउंट्स नंबर जारी कर दिए। कोकेन सप्लाई नेटवर्क की नई ऑडियो ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। नवीद कमाल रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। एक्स पैगाम में लिखा, ये इंतखाबात महज इक़्तिदार के हसूल की जिद्दोजहद नहीं बल्कि जमहूरियत के मुस्तकबिल का फैसला है। बानी का पैगाम हर शहर, कस्बे और गांव तक पहुंचा रहे हैं। मुआशरे के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों से राबते में हैं। मुआशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट हासिल करने के ख्वाहां हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की इजाज़त मिल गई। नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान रवाना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने मियां नवाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के कहने के नवाज शरीफ कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में जलसों से खिताब करेंगे और नून लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। वो चंद रोज़ कबल NOC ना मिलने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सके थे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। खित्ते पर तवज्जो दी जाए तो ये मिनी स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। इलाके में तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, अगर नवाज शरीफ की हुकूमती बार बार ना गिराई जाती तो पूरे मुल्क की किस्मत बदल जाती। अब फिर खित्ते की तरक्की का आज़म लेकर निकले हैं। गिलगित के हल्का GBA 1 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा। पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जोशो खरोश दीदनी। IPP उम्मीदवार मौलाना सुल्तान रईस ने जलसे से खिताब में कहा, हम झूठी तसल्लियां देने और झूठे वादे करने वाली पार्टी से नहीं हैं। सारे वादे पूरे करके मैदान में उतर रहे हैं। जीत कर IPP के मंशूर के मुताबिक इलाके की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। ऐसी पार्टी के साथ नहीं है जो झूठ बोल के वोट मांगे। आज टेबल पे खड़े होके सीना तान के ये कह रहे हैं, इक़्तिदार से बाहर रख के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिला दिए हैं। इंशाल्लाह जब इक़्तिदार में होंगे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हम यहाँ दूध की नहरें नहीं बहा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 24 जनवरी नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबी मार्के के लिए कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूस और रैलियां अरूज पर हैं। मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 है, जिसमें 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए रखी गई हैं। मखसूस नशिस्तों को मिलाकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में सीटों की तादाद 33 हो जाती है। सादा अक्सरिये से हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों का फिगर मैजिक नंबर है। गिलगित बल्तिस्तान में अहल वोटर्स की तादाद 9,58,480 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,000, खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,000 है। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में उतरे हैं। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। मुस्लिम लीग नून 22 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ ने 11 उम्मीदवारों को टिकट्स जारी किए हैं। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10 उम्मीदवार और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में शरीक हैं।